संध्या बेला में मैं वंदना, डॉक्टर शमीनाज और हमारी सहकर्मी मंजू जी के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करती हूँ। हर साल की भांति इस वर्ष भी समापन बेला पर हम उपस्थित हैं आपके समक्ष, यहाँ पर सुंदर सुंदर कविताओं के साथ, हमारे प्रतिभावान कवि कवित्रियों के साथ। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ नलिनी टंडन जी को, जो हमें नव वर्ष पर एक प्यारी सी कविता सुनाएंगी। Namaskar everybody. Morning from here and good evening in India. I just wrote this in the morning today, a few lines which I am reading. As the year ends, we dream new dreams, filling our hearts with hope. New desires take root, entwining themselves with each breath we breathe, reaching the zeniths of aspirations that had sprouted somewhere, sometimes as tiny, gentle, hopeful buds. The past lies plastered all around us, forgotten, discarded, to be shunted away from our vision for the present, like the yesterday that has departed with the setting sun. Fleeting memories will return and remind us the laughter and the sorrow that the year sowed and reaped will be bill-like in some corner, till the nascent new dreams that have taken root and germinated, sustained and soar high, spreading their wings to fill our hearts with joy. We may then pause, take a long deep breath, and peep over the shoulder to glance at the forlorn partners that befriended us this past year, as our actions, speeches, desires, and deeds. As the nascent sun rises, go forth and embrace that which is new. But hark and gather the petals of the past, storing them in the treasure chest of memory. Goodbye and farewell, old year of the fleeting light. Your days have folded into the night. You leave behind your joy and scars, a trail of dust beneath the stars. Thank you. बहुत खूबसूरत नाम और एक बहुत ही अच्छी पोएम हमारी आज की शाम को शुरू करने के लिए। और इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मेरे पास एक छोटी सी केदारनाथ अग्रवाल जी की विचारधारा है उनकी कविता में, पर मैंने उसमें थोड़ा सा उसको फ्यूचर टेंस में कर दिया है क्योंकि अभी हमारा नया साल कल से शुरू होगा। केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं, नए साल की ठिठकी ठिठकी ठुठुरन, नए साल का सूरज नया तोड़ेगा, देश काल पर धूप चढ़ेगी, हवा गर्म हो फैलेगी, पौरुष के पेड़ों के पत्तों के चेतन चमकेंगे, दर्पण दे दसों दिशाएं, दर्पण दे ही दसों दिशाएं, रंग रूप की दुनिया विलपित करती रहेगी, मानव मन में ज्योति तरंगे नए साल में उठती रहेंगी। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो है इसी तरंग के साथ अपनी कविताओं को प्रस्तुत करें और हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोइट की तरफ। हमारे जो अगली कवि हैं, मैं निमंत्रित करना चाहूँगी हमारी नीरजा मैम को। मैम आई थिंक आप इसमें इंडिया में आ गई हैं शायद, तो उसी मैम आप तैयार हैं? मैम चल रही हैं शायद। नीरजा मैम अब अनम्यूट है मैम। मैं तैयार हूँ। हाँ जी स्वागत है। हाँ, मैंने अनम्यूट कर लिया अपने को। हाँ जी। So today I'm going to read a poem on a mirror because मतलब नए साल का तो है ही ये आगमन और पुराना वर्ष जा रहा है, तो उसकी सबसे पहले तो मैं सभी को बधाइयाँ देती हूँ और चाहती हूँ कि नव वर्ष सबके लिए शुभ हो और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए वर्ष के। उसके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो मिरर है, दर्पण जो है, वो क्या क्या हमें सिखाता है या क्या क्या हमें बताता है। That I will just read out. Mirror is never an error.
It is the true reflection without any measure. But mirror can be a terror because it scales the truth with fervor. Mirror looks as clear as crystal, made of glass of different luster. All geometrical figures of mirror give shades to every object reflected in a maze. Mirror is the variety of life. Man can turn an angel or adopt a vice, winning the world with all lies mingle, and laying bare his power in shingles. Beauty is truth, truth is beauty, is an appropriate maxim for the mirror. This material world may forsake you, but you seek shelter in the mirror review. Mirror is an incredible invention, opening the doors of each detection. Your picture becomes an inverted image when your unpended self surpasses your lineage. Fairy tales depict the charm of magical mirrors, wavering the wicked queen's mind with vengeance, but Snow White replies with consolation. Kindness pays, but vanity gives exaltation. Mirror reflects a history of life, ancient monuments and transcriptions are a mirror of old ages, beholding our past with tales from sages. Religion teaches us to introspect. Materialism promises to prosper with all assets. Spiritualism instructs to search your soul, because the soul is the mirror that reflects your goal. Mirror gives transparency to your innate self, scanning, analyzing, and comprehending your own self. Know then thyself and not learn to scan, for mirror is the true reflection of man. Thank you. बहुत ही खूबसूरत कविता मैम। आपकी कविता सुनकर रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता याद आई कि कैसे हर समय हमें मिरर ही है जो अपने आप से मिलवाता है। जा रही देवता से मिलने तो इतनी कृपा किए जाओ, अपनी फूलों की डाली में दर्पण यह दिए जाओ। बहुत ही खूबसूरत कविता सुनाई आपने मैम। थैंक यू। प्रसन्ना सर, अगर आप हैं यहाँ पे अनम्यूट करके क्या अपनी कविता सुना सकते हैं प्रसन्ना सर? नहीं, इस बात पर आप हंसेंगे नहीं। क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, जो I wish you होने के लिए भी जमा हुए हैं। Namaste, ma'am. Okay, time slithered, a year passed. What's left to be recalled? What's left to be remembered? The breeze of sanity lost its clarity. Whether it's moving ahead towards futurity or it's just making a step towards senility. Yes, for the blooming days, it's a walk into kissing the joviality of juvenility. And for the maturity, it's the walk into the past to reminisce about chill-witted bliss, to live in the days to come with positivity. The pages of yore and the unscripted future, nothing is designed for sure, says this the unruly poetess. Thank you. Thank you very much, sir. Would you like to say something? Aji? Were you saying something? Sorry. No. Okay. Thank you for such a lovely poem, sir. Of course, indeed, like if the past year didn't bring any hope, we should go ahead with the bright future thinking in the mind. So let's go ahead और इसके साथ हम लोग हमारी अगली पोएट को, अगली कवित्री को बुलाना चाहेंगे और मैं ये आमंत्रित करती हूँ अमिता मैम को। अमिता मैम, आप सुन रहे हैं? हाँ, अभी ठीक है। आप अपना वाला अनम्यूट करिए मैम।
आज की सुंदर शाम मैम एक डिवाइस से लेफ्ट कर जाइए। आज की सुंदर शाम मैम आप अगर पास में 2 डिवाइस रखेंगी ना तो वो इको करता है, तो या तो आप उसे किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए या फिर अगर उसकी ज़रूरत है, और नहीं तो उसे लॉग आउट कर दीजिए, उसे फेंक दीजिए। आज की सुंदर शाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड भी इतनी ज़्यादा है, कहीं जाने का भी नहीं, तो घर पे बैठ के ही सबसे मिलना बहुत सुंदर है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि नव वर्ष में नव विचार का नव उद्गार हो, नव रस के साथ नव ऊर्जा का नव संचार हो, नव प्रभात में नव जीवन का नव प्रभात हो, नव आयाम नव उन्नति से नव युग का निर्माण हो, नव शक्ति से नव मानस का विस्तार हो, नव रूप से नव वर्ष का आगाज हो, नव वर्ष 2026 का अभिनंदन आप सभी को स्वीकार हो। कल प्रातः काल जब सूर्य उदय होगा प्राची में, पंखुड़ी कमल की खिल जाएगी, नहीं जानते प्राची दिशा लालिमा मुक्त हो युक्त होगी या फिर सघन घना कोहरा होगा, नहीं जानते क्षितिज लाल होगा या फिर धुंध का साम्राज्य होगा। पर हाँ, हमारे फोनों पर नव वर्ष मंगलमय हो, नूतन वर्ष शुभ हो का संदेश का अंबार होगा। चहकेगी पक्षी पेड़ों पर, कलरव से भर जाएगा, मलयानिल चल धीरे धीरे उपवन को महकाएगा। दिग दिगंत सुरभित होगा, तरु पल्लव भी खिल जाएंगे। इस शीत ऋतु के मोहक मौसम में अनगिनत सुसज्जित प्रकृति वधु के साथ सभी नववर्ष के आगमन के उल्लास में सुसज्जित हो, उल्लसित हो, प्रेम से एक दूसरे को नववर्ष की मंगल कामना का आदान प्रदान करेंगे। फिर कुछ संकल्प लिए जाएंगे, फिर कुछ नए कदम उठाए जाएंगे। सभी आनंदित हो सृष्टि के सुंदर स्वरूप में शुभ भावनाओं का आदान प्रदान करेंगे। क्या कहें, उम्र की माला में एक और मोती जुड़ गया या गिर गया। जो कुछ भी कहो, बीतता हर पल कुछ सिखा गया, कुछ बता गया, कुछ से मिला गया और कुछ बिछड़ गया। पर उन सारी यादों के बीच सच पूछो तो हर दिन नया साल सा आता है और चला जाता है, और जिंदगी लम्हा लम्हा बीतती जाती है, सिखाती जाती है, और यही चिर सत्य है, यही चिर सत्य है। अद्भुत मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरती से शब्दों को पिरोया है। मैं तो बहुत एक छोटी सी कविता लिखी, अब मैं सोच रही हूँ अब पढ़ूं कि ना पढ़ूं। ना देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। छोटे बड़े काम के होते हैं ना, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। आप पढ़िए जरूर से जी। मैं डॉक्टर शमीनाज और मंजू की कविता के बाद पढ़ूंगी अपनी कविता। डॉक्टर शमीनाज, मैंने बहुत दिन से कोई कविता कुछ इंग्लिश में हिंदी में, रश्मि, हाँ रश्मि मालापुर, ये मेरी फ्रेंड है महाराष्ट्र से। अभी इनका मैसेज आया तो मैंने सोचा इनको भी इनवाइट कर लूं। Yeah, hi everybody. Sorry, I'm not in this proper dressed up because this was very impulsive. अभी शमीनाज ने मुझे बताया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो अभी थोड़ा सा सुन लीजिए, अभी 3-4 लोग हम लोग हैं, उसके बाद आप अपनी या कोई किसी की कविता सुनाइएगा। तो मैं अभी ना फैज लुधियानवी की एक, शमीरी अनम्यूट योरसेल्फ, sorry. यू आर ऑन म्यूट। सॉरी, तो हम कह रहे रश्मि इज माय फ्रेंड, और रश्मि अभी मैसेज करी, तारिक सर हैज ज्वाइन, ही इज टर्किश पोएट लिविंग इन यूएस नाउ डेज। तो
Sir, it is a multilingual. We are reciting in our language also. So, Rashmi, you can recite after one or two poet recite. So, I am reciting a Hindi poem by Faiz Ludhianvi. ए साल ए नए साल बता तुझमें नयापन क्या है. सर, आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन अ लिटिल बिट इंग्लिश ऑल्सो फॉर यू. ए नए साल बता तुझमें नयापन क्या है, हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है. न्यू ईयर प्लीज टेल मी व्हाट इज न्यू इन यू, बिकॉज देर इज एवरीवेयर सो मच ऑफ नॉइज. रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही, आज हमको नजर आती हर एक बात वही. एवरीवेयर इट इज सेम, वेदर इट इज day full of light or starlit night, and nothing we can see and which is new. आसमान बदला है अफसोस ना बदली है जमी, एक ही हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं. मीन्स नाइदर स्काई हैज चेंज, अ लिटिल बिट स्काई हैज चेंज बट अर्थ हैज नॉट चेंज. सो इफ समथिंग इज देर इज अ लिटिल बिट चेंज, देन दैट इज नॉट अ बिग थिंग. अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे, किसे मालूम 12 महीने तेरे. सो नाउ देर विल बी अगेन सेम 12 मंथ. जनवरी फरवरी मार्च में पड़ेगी सर्दी और अप्रैल मई जून में होगी गर्मी. इन जनवरी फरवरी मार्च देर विल बी कोल्ड एंड इन अप्रैल मई जून इट विल बी हॉट. तेरा मन दहर में कुछ खोएगा कुछ पाएगा, अपनी मियाद बसर करके चला जाएगा. मीन्स समथिंग विल बी लॉस्ट एंड समथिंग विल बी फाउंड. तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नहीं, वरना इन आंखों के देखे नए साल कई. इफ यू आर न्यू देन शो समथिंग न्यू, whether it is in morning or at evening. Otherwise we have seen so many, our eyes have seen so many new year. बेसबब लोग क्यों देते हैं मुबारक बादे, गालिबन भूल गए वक्त की करवी यादें. why people are wishing on the new year? because previous year has been harsh. तेरे आमद से घटी उम्र जहाँ से सबकी, फैज ने लिखी है ये नज्म निराले ढब की. सो आफ्टर मीन्स विथ योर एडवेंट, मीन्स व्हेन इफ न्यू ईयर हैज कम देन एवरीबडी हैज लॉस्ट एन ईयर. सो फैज हैज रिटन दिस न्यू poem just for you. Thank you. शुक्रिया डॉक्टर शमीनाज इतनी खूबसूरत पोएम पढ़ने के लिए और फिर उसको हमें हमारे और बाकी पोइट्स को समझाने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर reciting such a lovely poem. And with this, we would like to go ahead to our new poets, those who have joined just now. If it's okay, I would like to invite Tariq Nursa sir. If you are ready, we can listen to your poetry. Sir, you are muted actually. We can't listen. Oh, Yeah. sorry. No, no. Hello and good evening. I'm in Texas, so it's in the morning now here. Yeah. Happy New Year to all of you. I'm happy and honored to have been invited among you. I'll just find a poem suitable. I'm going through my poems. I'll choose one. Okay. Okay, later on, please. Thank you. I'll Thank you. put up my hand when I'm Yeah, ready. we'll get back to you after one more poet, sir. Then. Yeah. Thank you. You're welcome. So, I don't know if Rashmi ji is ready to recite a poem now. Are you ready? Because rest of them have recited already. So, Okay, this is my book called Silence. It's called Silence Mauna. I'm just randomly reading one short poem from it. It's known as a sound of rage. A sound of rage at times. It is a sound of the rage. Don't perceive it as a forced profoundness. Thinking is an inward journey. Silence is not a destination, but an act of putting all doubts at rest. Putting your guard down, accept that erring is human, and attack is not always the best defense. Yeah, that's it. thank you so much. Thank you so much. You're welcome, ma'am. Vandana, ma'am?
Yeah, thank you, sir, for joining in short notice. I would like to invite मंजू जी की बारी आ गई है, तो मंजू जी से कविता सुनना चाहिए. वो वाली short poem was not counted, मंजू जी. No, I have another poem. I have one in Spanish, so I can contribute to the multilingual facet of this event. So I have this poem. ये Julio Cortázar की poetry है. He's a Spanish poet और उन्होंने ये poetry लिखी है दिसंबर के एंड और न्यू ईयर की बिगनिंग को मार्क करते हुए. This is a poetry by a poet called Julio Cortázar. He's a Spanish poet, and he has written this poetry about December end and the beginning of New Year. This is in Spanish, so I'll give you a bit like summary of the poem later on. Mira, no pido mucho, solamente tu mano. Tenerla como un sapito que duerme así contento. Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo. Ese trocito de azúcar verde de redondo alegre. No me prestas tu mano en esta noche de fin de año de lechuzas roncas. No puedes por razones técnicas. Entonces la tramo en el aire pudiendo cada dedo. De Duranzo, Cerezo de La Palma y el Dorso, ese país de azules árboles. Así la tomo y la sostengo, como si de ello dependiera muchísimo del mundo. La sucesión de las 4 estaciones, el canto de los gallos, el amor de los hombres en el nuevo año. I'll try to give a translation. Mira, look, no pido mucho. I'll not ask for a lot. Solamente tu mano, only your hand. Tenerla como un sapito que duerme así contento, so that I can hold it in my own hands and sleep peacefully. Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo. I need to hold the hand like a door to enter in your beautiful world. Ese trocito de azúcar verde, it's like a green window, a piece of green window for me, de redondo alegre, that gives me a very complete happiness. No me prestas tu mano en esta noche de fin de año de lechuzas roncas, but do not give me your hands at the end of this year, which is going to end soon. No puedes, I cannot do that. Por razones técnicas, because I have my own reasons for this. And that could be like it's the end. He wants a big one. Entonces, la tramo en el aire, hundiendo cada dedo. So what I will do, I will leave your hands free in the air and let your fingers fly. So I feel the warmth. El Duranzo Cerezo de La Palma, and I can feel your palm along with the fingers. El dorso, ese país de azules árboles, así la tomo y la sostengo. They remind me the beautiful nature of my country that is very green and that I want to sustain forever. Como si de ello dependiera muchísimo del mundo, and this all will make the other world relate and depend on it. La sucesión de las 4 estaciones, and they all remind me the 4 seasons in the world. El canto de los gallos, and the beautiful mornings with the sounds of the cocks, and el amor de los hombres, and the morning love of the lover of your life. Happy New Year. Thank you. हाँ ज्वाइन करेंगी ना? Already, I think you're. हम कह रहे ज्वाइन करेंगी ना? Why not? ज्वाइन करिए. I'm ready now. Yes. Okay. Yes, sir. Then let's go ahead with your poem. A few years ago, I
that a selection of ideas from the Rig Veda. And it's about 40 pages, my distillation from the Rig Veda. And this one is one of the poems in that. And I don't know how you will, what you think about it and how you will. Waters. Let's give gifts to rivers, goddesses who help us when we are thirsty. All waters, bring health, protect my body, so that I can see the sun for decades. When something evil happens, the victim is helped by waters. If there is a lie, waters correct it. When there is perjury, waters overcome it. All water, you are benevolent. Contribute to our power. Let's be happy together. Who has the utmost value? The essence of life. Provide it like a nursing mother. Be our source of healing. Let our sins disappear with swearing and lies. All waters purify us. So this is a prayer poem based on the Rig Veda. It's from your culture. Sir, any Turkish poem? Yes. Sir, any short Turkish poem? Yes. Okay, here it goes. And then I'll give the meaning. Bütün sıfatları bir kenara koydum. Galaksiler vücudumda. Sonsuzluğu soydum. Okşuyorum. Artık ne bir soru ne bir yorum. It is the meaning is I have put all adjectives aside. Galaxies are in my body. I have undressed infinity, caressing her. No more questions now, not a single comment. Yes, something. Thank you very much, sir. Nadi, let's explore another emotion and new poem by a new poet. Nadi, are you there? Okay, I think Nadi is... Vandana is muted. So I would like to invite, let's go ahead. Yeah, I can see. I could see Alka ma'am. Alka ma'am, are you there? Alka Prakash ma'am? Yes, Manju, I am Ma'am, here. ready है आपको poem सुनने के लिए. Good evening, everyone. I am in my village place, and connectivity is very poor here. So I recite only one poem. Sure. I recite only one poem. मैम साईनाथ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई शुक्र. ये कविता पाठ में अवसर देने के लिए. मैं सिर्फ एक कविता पढ़ूंगी और आप सबका ध्यान आकर्षण चाहूंगी. कविता का शीर्षक है पिता के बिना. कविता का शीर्षक है पिता के बिना. तुमने कहा था विदा के वक्त जाओ, रहूंगा सदैव साथ. तुमने वादा तोड़ा है, अब कहाँ खोजूं तुम्हें, कहाँ पाऊं तुम्हें. बताना चाहती हूँ अपने जीवन में मैंने सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे किया है. अब बहुत ही अकेली हूँ मेरे पिता. फोन आया, वह इतना ही बोली, बेटा डैडी, प्रयागराज से घर का रास्ता कटता ही नहीं. आज क्यों इतना लंबा रास्ता. हमेशा तो इसी रास्ते तुमने भेजा. वैसे ही
मेरा आना वैसा नहीं, बहुत अलग। एक विशाल जनसमूह घर की ओर आ रहा। मैं अपने वाहन से देखती केवल सिर। मैम ने एक साल पहले या 2 साल पहले अपने पिता को खोया है ना। शी लॉस्ट हर फादर आई थिंक 2 years बैक, है ना मैम। तो एक कविता में वो उनका ये दर्द साफ झलक रहा है। मैम डिप्रेशन में चली गई थी अलका मैम काफी दिन तक। पिता तुम हमेशा के आत्मविश्वासी, नीरज के प्रति रूप। नहीं पड़ी बीमार, नहीं मांगा एक गिलास पानी। सबको एकत्र किया, मनाया जन्म दिवस। उत्तरायण सूर्य, उत्तरायण सर्दी, चलती तेज हवाएं, गर्जन तर्जन झंझना। जहाँ मिलता मोक्ष, विकराल लगते अब। बस एक बार तो और मिल लेते, कुछ भी करके यह तड़प तो न होती। काश आ गई होती एक दिन पहले तुम्हारे जन्मदिन पर इस नौकरी में तो मैं कसाई के घर बटी बची। आओ भाई बैठो मेरे पास। अकेले दुख करता नहीं, हृदय में भूख उठती है। मेरा कलेजा बढ़ता है। कभी न रोने वाला मेरा भाई रो पड़ा है, और छोटी बहन। भाई ले लेगा पिता की जगह, पर बहनें विस्थापित रहती हैं। परंपरा सदियों की है, वे नहीं लेती मायके में किसी की जगह, और ससुराल में सुनती दूसरे के घर से आई। एक ऐसी गृह लक्ष्मी जो सदैव रहती लक्ष्मी ही। मेरी माँ का था विश्वास कि जाएंगी पिता से पहले। कभी मेरी सास का भी, और हे ब्राह्मणों, मैं तुम्हारे सभी ग्रंथों, संहिताओं और स्मृतियों को धिक्कारती हूँ, जो हमारे समाज की स्त्रियों को गहरे अपराध बोध में रखती है। पति का पहले जाना उन्हें ले आता है क्लास। कभी छोड़ दे कोई पुरुष अपने घर को, और सारे अधिकार चला जाए सीधे दूसरे अनजान पर। कभी छोड़ दे कोई पुरुष बचपन के साथ अपना कमरा, अपना शहर, मोहल्ला, गाँव। कभी छोड़ दे कोई पुरुष अपनी माँ, बहन, परिवार, सारे मित्र, साथी, परंपरा के नाम पर। शकुंतला की विदाई पर कण्व का विलाप अब समझ आता है, और आता है समझ जनक का सीता की विदाई पर मूर्छित होके पड़ना। मैं कोई पहली स्त्री नहीं हूँ जो ये अकेले संसार झेल रही। मैं कोई पहली स्त्री नहीं हूँ जो अकेले संसार झेल रही। पूरा पूरा भी बेटियों का करुण आख्यान, मेरे विलाप सारी स्त्रियों का दुख शामिल। पिता बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहिए। मेरी छोटी बहन अपनी विमान में है, बल्कि टोरंटो से चली। तुम्हारी धूल तक न पा सकी, न आखिरी विदा में तुम्हारे गले लग रो सकी। देश का राजा चला गया, और बेटी अनाथ। बेटी मायके में हक नहीं मानती, ससुराल में लड़ नहीं पाती, क्योंकि वह पिता से प्रेम करती है। काश मैं हमेशा छोटी ही रहती, कभी बड़ी न होती, तब सब कुछ वैसे ही रहता। तुम मुझे स्कूल छोड़ने आते, फिर लंच में गरम खाना भिजवाते, खूब घुमाते, और रात में वही 2 कहानी सुनाते। हर रात वही 2 कहानी। माँ कहती, तुम रोज सुनते उगती ना हो वही 2 कहानी। पौराणिक नगरी है यह घोसी, राजा नहुस का परकोटा था कहीं जिस जगह, वहाँ एक बीटा है खजिया। किला बनाते वक्त श्रमिक मिट्टी की टोकरी पटकते थे, उसी दूर से बन गया बीटा। अब मिलती है कोट की मटर मीठी जैसे शहद। आप हमेशा भिजवाते, अब वह स्वाद कहाँ, अब वह गंध कहाँ। उस नगर पंचायत के तुम प्रथम अध्यक्ष, सजाया संवारा अपनी नगरिया को, और भेज दिया मुझे ससुराल। कभी कभी ऐसा लगता कि कन्या की विदाई देश निकाला है। मैंने कहा था करूंगी कभी विवाह, रहूंगी सदैव साथ। आपने कहा बिटिया समाज, आपने कहा बिटिया समाज। जिस वक्त मुझे लगा कि मेरा यह घर छूट जाएगा, एक अजीब सा डर लगा था। जब से तुम्हारा घर छूटा मेरे पिता, मैं हर दिन एक इम्तहान देती। जब से तुम्हारा छूटा मेरे पिता, मैं हर दिन एक इम्तहान देती हूँ। हर एक व्यक्ति सवाल पूछता है,
मैं हर दिन एक इम्तहान देती हूँ, हर एक व्यक्ति सवाल पूछता है। सुनो, तुम्हें कुछ और दिन रखना चाहती पास, मुझे और पढ़ने देना था। मेरी कोई इतनी उम्र भी तो न थी, तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया, केवल इसलिए है जिसे निभा रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। बहुत बहुत आभार शमीनाथ, क्योंकि गांव में आज कुछ ऐसे प्रोग्राम में हूँ कि इसके लिए सॉरी बोलूँगी। फिर भी एक कविता मैंने सुना दी जो लिखी थी। आशा है आप सबको पसंद आई होगी। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, आपकी कविता न जाने कितनी लड़कियों का दिल का हाल बता रही है। आई थिंक ऑल द लेडीज हियर वुड एग्री विथ मी। Tariq sir, she has narrated the plight of married ladies. हाँ मंजू। अभी अभी शमीनाज ने भी अपने पिता समान चाचा जी को खोया। आई थिंक शमीनाज भी इस दर्द से गुजर रही है। तो बहुत ही इमोशनल कविता थी मैम की। चलिए कुछ माहौल को बदलते हैं आगे बढ़ते हैं। और कौन आई थिंक गौहर सर सर would you like to narrate your poem? Welcome sir. I think मेरी सर से पहली मुलाकात है। Most welcome sir. आपके मंच पे आपका स्वागत है। मंजू, इंट्रोडक्शन दे दो। हाय, कैन यू हियर मी नाउ? जी कैन यू हियर जी मी नाउ? सर। या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस जी जी जी। नाइस टू सी एवरीवन हियर। आज पहली बार मैं बहुत लोगों को यहाँ देख रहा हूँ, लेकिन मैं चूंकि बाहर था, ट्रैवल कर रहा था, मैं अभी घर पहुँचा हूँ और मैंने सोचा कि नहीं मुझे ज्वाइन करना चाहिए। जी तो आप प्लीज गिव मी सम टाइम। मैं हूँ यहीं पे, मैं भी आपको सुन रहा हूँ, सबको सुन रहा हूँ मैं। वेलकम सर, वेलकम सर टू आवर ग्रुप। इट वाज टू इंटेंस एंड इमोशनल। मैं गौहर सर वेलकम आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, आपका भी शुक्रिया बहुत। और जैसे जो भी पॉइंट सुनाई इन्होंने, हल्का मैम किया, मुझे भी थोड़ा इमोशनल कर दिया। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है वो, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, इट्स नॉट फॉर वुमेन ओनली। मर्द भी इस चीज़ से गुजरते हैं। बहुत से इमोशंस ऐसे ही होते हैं जो घर वालों से अपनों से जुड़े होते हैं। और ये मुझे सुन के अच्छा लगा। बस यू प्लीज कंटिन्यू। मैं हूँ यहीं पे हूँ, आई एम ऑन द प्लेटफॉर्म। मैं हूँ यहीं पे, गिव मी सम टाइम प्लीज। निर्जा मैम और मंजू तो गौहर सर को जान तो हम हाँ बोलिए। निर्जा मैम और मंजू तो आप को तो आप जानते ही हैं। तो आपसे तारिक सर को भी आप जानते हैं। तो इसके अलावा वंदना है। हाँ, वंदना है मेरे शहर की, अभी चेन्नई में है। नलिनी मैम निर्जा मैम की बहन है और वो दिल्ली में रहती हैं। कभी आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन अभी आजकल वो यूएस में है। रश्मि बॉम्बे में रहती हैं। अमिता मैम हमारे शहर में है। प्रसन्ना सर कहाँ है? हैदराबाद की उड़ीसा? प्रसन्ना सर हैदराबाद। हाँ, अब तो हेलो नीरजा मैम, हेलो मंजू मैम, हेलो तारिक सर, आई नो यू ऑल, आई नो यू, हेलो नलिनी मैम, एवरीवन, हाय रश्मि मैम एंड अमिता मैम। जब तक गौहर सर अपनी कोई पोएट्री ढूंढ रहे हैं, मैं अगर कोई आप में से दूसरी पोएम भी पढ़ना चाहे, नहीं तो मेरे पास एक छोटी सी पोएम और है इंग्लिश की। लेकिन मैं पढ़ देती हूँ। जी नलिनी जी मैम पढ़िए। और आप ढूंढ लीजिए पोएट्री जब तक नलिनी मैम पढ़ रही हैं। नहीं तो किसी और की भी पढ़ सकते हैं। मैंने तो फैज लुधियानवी की पढ़ी है ना नए साल पर, तो ये गौहर भी किसी की पढ़ सकते हैं, किसी और की पढ़ सकते हैं। मेरी ये कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी। इसका नाम है Waves of the ocean rise high, singing a song of gratitude.
seize and engulf all that crosses its path. The mind of a human is bounded by the waves that differ, assailed by waves of doubt, enthralled by waves of joy, tortured by waves of guilt. It always curates new beginnings and ends. Waves of pain often assail us, whether of guilt, self-doubt, or depression. Our bodies are also visited by real waves of pain, abdominal, spinal, or our dome, the limbs, or the limbal figures. Differing aspects of minor or major waves impact our life throughout our existence. Some bring joy, some wrong, and some provide immense peace and tranquility. Thus transcends the power of waves. Thank you. Thank you very much, Nalini ma'am. That's like sounded like a poetry by a doctor, really. I felt like that. Thank you so much, ma'am. Vanadi, would you like to read a poetry? हाँ, मैं एक तो कविता मैंने लिखी, मैं उसे समापन करते समय पढ़ूंगी। अभी मैं पढ़ रही हूँ हरिवंश राय बच्चन जी की एक छोटी सी कविता है। कविता है, आओ नूतन वर्ष मनावे। गृह विहीन वन प्रयास का, तप्त आंसुओं तप्त श्वास का, एक और युग बीत रहा है। आओ इस पर हर्ष मना ले, आओ नूतन वर्ष मना ले। उठो मिटा दे आशाओं को, दबी छिपी अभिलाषाओं को। आओ निर्ममता से उर्मे यह अंतिम संघर्ष मना ले, आओ नूतन वर्ष मना ले। हुए बहुत दिन खेल मिचोने, पाप यही थे निश्चित हुए। आओ सदा दुखी रहने का जीवन में आदर्श बना ले, आओ नूतन वर्ष मना ले। किस माइंडसेट में लिखे कवि मुझे नहीं पता। मैं हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। He is very renowned poet, and a little explanation I want to give about this poem, that this is time to look back when we faced many challenges together, enjoyed many joys. The old year may be going, but the memories associated with it will always stay in our heart. The new year brings new hopes, new dreams, and a new beginning. Let's make a resolution to achieve our goals, spend time with our loved ones, and make life even more good. Thank you. ये थी हरिवंश राय जी की कविता। मंजू, आप I would also like to recite one poem. Sure, ma'am. Amita ma'am wants more of the poem. Yes, ma'am. Let's listen. I think everybody is warmed up now. रात एक ख्वाब देखा, बड़ा प्यारा ख्वाब देखा। दोस्तों की गुफ्तगू देखी, हर तरफ प्यार देखा। दावतों का दौर देखा, महफिलों की शाम देखा। प्यार की बरसात देखा, खुशियों का सैलाब देखा। आँख खुली तो नव वर्ष का आगाज देखा। हर फोन पर नव वर्ष मंगलमय का पैगाम देखा। पहली बार ख्वाब को साकार देखा, रात एक ख्वाब देखा। आजकल सर्दी बहुत है, तो मैं सर्दी की सुबह से केवल 4 लाइनें बोलूंगी, ज्यादा समय नहीं दूंगी। मैम, आपके सारे सपने साकार, सारे ख्वाब साकार पूरे हो। ये कोहरे की चादर से ढकी सुबह, ये सूरज को छुपाती सुबह, ये अलसाई सी सुबह, ये रजाई के आगोश में लेती सुबह, ये गर्म चाय की प्याली को ठंडी करती सुबह, ये कसरत और टहलने से बचाती सुबह। बड़ी प्यारी है ये सर्दियों की सुबह, मन को लुभाती है ये कड़कड़ाती सुबह, ये कोहरे की चादर से ढकी सुबह। और ये सबको इस मंच तक खींच कर लाई सुबह। बहुत खूबसूरत मैम, महफिल का रंग जम गया बिल्कुल इसके साथ। नीरजा मैम, आप भी कोई दूसरी पॉइंट पढ़ना चाहेंगी? मैं पढ़ना चाहूंगी इंग्लिश में थॉट्स है एक पोएम। माय पोएम ऑन थॉट्स। वैसे मैं हिंदी में भी पढ़ करती थी काश पे, लेकिन एक कभी ये थॉट्स पे पढ़ रही हूँ, मतलब विचार, थॉट्स।
ये तो हमारे जिंदगी में आते रहते हैं, हम जीते भी इन्हीं के साथ ही हैं। तो मैंने लिखा है, मतलब आई रिटन, थॉट्स आर लाइक रेन ड्रॉप्स, they pitter patter up and down like on sand galore. Thoughts are unorganized, needing to be framed with purpose, like beads sewn in a necklace, looking focused and center-faced. Thoughts and emotions are interconnected. They are tied together with a strong bond. Happiness exhilarates you mentally. Sorrow disturbs you sadistically. When learning is purposeful, creativity blossoms. When creativity blooms, thinking emanates. When thinking triggers, knowledge is enlightened. When knowledge is lit, satisfaction is brightened. Dreams are transposed into thoughts. Thoughts in turn result in action. Action leads to self-discipline, which transforms life with gratification. When thoughts go astray, they wander through the caves of the dungeon. A magic wand needs to be finite to kindle the spark of light infinite. Treacherous thoughts are emitted by feeble mind, making the soul commit untold crimes. Punishment becomes the timely recourse to subdue the soul with sweet discourse. Innocent thoughts of a child are vulnerable. They are spontaneous, innate, and unblemished. They speak the truth without hesitation because it is spoken without temptation. Thoughts of an adolescence play hide and seek with parents, siblings, friends, and neighbors meek. Reason is tossed towards heaven, mocking the world, having no haven. Thoughts get refined with maturity, tempered with reason and authority. Counseling and advices taper the mind, giving you strength to look behind. Thoughts with age is spiced with experience, giving you wisdom to practice before you preach. Shouldering your burden with a mind, bowing with grace, spreading a smile. Thank you. ब्यूटीफुल माना, वेरी ब्यूटीफुल पोएम। एक्चुअली थॉट्स ही हैं, विचारों का ही संघर्ष हर समय हमारे मन मस्तिष्क में चलता ही रहता है। थॉट्स ही हैं जो हमें कनेक्ट कराते हैं। ब्यूटीफुल पोएम। रश्मि मैम, वुड यू लाइक टू रिसाइट एनी अदर पोएम? Actually, I don't have. Yeah, I don't have. I mean, I just have this book on hand with me. So after some time, maybe. Thank you so much. Okay. Sure, ma'am. Sure. Gohar sir, if you are ready. या डॉक्टर शमीनाज, आप कोई कविता? गौहर सर एक्चुअली कह रहे थे वो रेडी हो जाएंगे एक दो लोगों के बाद। गौहर सर, आर यू देयर? जी। तो डॉक्टर शमीनाज के पास चलो। आप रेडी हैं सर? चलिए मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। पहले तो एक वैसे ही एक ये मंगल नसीम ने एक कविता लिखी थी छोटी सी, लाइन की है, नहीं हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि आपको मन नहीं है, मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, मुझे लेकर कोई उलझन नहीं है। और फिर मंगल नसीम। और अब एक छोटी सी पोएम मैंने बहुत पहले लिखी थी, तो बरसात का मौसम था, बारिशें हो रही थी और मैं घर पे बैठा हुआ था। The raindrops near pane, the window pane, bring the feel of your footfall. Fiery cinders in the fire pot. You know, हमारे यहाँ कश्मीर में we have a fire pot, इसमें कोयला जलता रहता है। Fiery cinders in the fire pot, evaporate the frozen desires. Look across the mountain. There is a dark cloud with a silver rim. Next to no time, rupture and deliver the yearning, turning the wishes into horses. Take hold of the impending hard-pressed snuffing, coloring the fracas inside the mind with even
mutual succor, whatever will in between, whatever will in between. बहुत शुक्रिया सर, दोनों ही बहुत खूबसूरत पोइट्री थी आप जो आपने पहले माफ कीजिएगा कवि का नाम आपने बताया था मंगल नसीम। पहला मंगल नसीम की, और ये आप वाली वन्या दी, आप अपनी वाली पढ़ना चाहेंगी? मैं आयशा आप लास्ट में पढ़ना चाहती हैं? हाँ लास्ट में पढ़ना चाहती हूँ मैं। डॉक्टर शमीनाज अगर रेडी है तो डॉक्टर शमीनाज की एक कविता। मेरे पास एक ही अपनी है अभी इस वक्त 2 साल से मैंने कुछ नहीं लिखा है। मैं और मंजू एक दूसरे अमृता दी की हाँ बोलिए बोलिए। तो मैं और मंजू याद है जब हम लोग रात में मतलब टहलते थे तो एक दूसरे को प्रॉप नहीं देते थे, तो एक बार चांद दिया था हमने, एक दूसरे को प्रॉप दिया था चांद पर कविता। आज से 2.5-3 साल पहले की बात है। तो मंजू ने सारी सूरज पर बना दी थी, मैंने चांद पर बनाई थी, फिर बाद में नहीं मंजू ने चांद पर फिर बाद में बनाई। वही पढ़े मंजू, वैंडी तुम लोग सुन चुकी हो। आप पढ़िए, मुझे कोई बात सुनना पड़ेगा। या कविता सुनना आपसे खुशनसीबी, तो आप चांद पे पढ़िए, सूरज पे पढ़िए, पढ़ी हुई कविता पढ़िए आपका। क्योंकि आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग सिंस 2 years. I have been translating, not written any short story, not written any poem, neither in English nor in Hindi, Urdu. So आप चांद वाली सुनाइए डॉक्टर शमीनाज। मैं और चांद, मैं और चांद अक्सर मिलते हैं और बातें करते हैं, दुनियादारी की, जिंदगी की, हालातों की और लोगों की दगाबाजियों की जो वो अपना कहकर देते हैं। मुझे उससे बात करके हल्का महसूस होता है, जैसे कोई अजीज हो। पर क्या मेरी बातें उस तक पहुंचती हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बातें गौर से सुनता है और जवाब में मुझ पर अपनी रोशनी बिखेर देता है, जो मुझे सुकून देती है। ऐसा लगता है कि मानो मेरे दिल का बोझ उतार देती हूँ। ये अलग ही एहसास है, इंसानी दुनिया से परे, जो रूहानी है, मेरे रूह को पुरसुकून करता है। अब मंजू गौर से सुनो। मेरी दोस्त मंजू चांद को काउंसलर कहती है और मैं इसे तन्हाई का साथी। सूरज जो मुझे बहुत मुतासिर करता है अपनी रोशनी और अनोखे अंदाज से, पर उससे मेरा नाता बरसों पहले टूट चुका है। पर चांद से नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे चांद से मेरा कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता है। शुक्रिया। चांद से सबका वही रिश्ता है, कभी खत्म नहीं होगा, चांद और सूरज रहेंगे। और चांद थोड़ा सा ज्यादा सुकून देता है क्योंकि आपको थोड़ा सा शांति का मौसम भी देता है वो। पर वो सूरज की रोशनी से चमकता है, पर वो सूरज की रोशनी से चमकता है। ठीक तो है, दोनों जुड़े हुए हैं। और सूरज के आने से दुनिया में और कोई कह रहे सूरज के आने से पूरी दुनिया में रोशनी बिखरती है, ये भी है। और जब सूरज डूबता है उसका मेटाफोरिकल एक मिनट मंजू और शमीनाज, मंजू शमीनाज गौहर जी और नलिनी जी, मैं ये नए वर्ष के लिए कहना चाहूंगी कि नए वर्ष के आने की खुशी में खुशियों की फुलझड़ी छोड़ना अच्छा लगता है, प्यार बिछाना, प्यार ओढ़ना अच्छा लगता है। सब एक ही रब के बंदे हैं, सबको शीश झुकाना अच्छा लगता है, हाथ मिलाना, हाथ जोड़ना अच्छा लगता है। तो इसलिए इस नए वर्ष पे सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बस मंजू एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जो सूरज डूबता है ना, मीन्स उसका मतलब ये भी होता है कि दुनिया में कोई चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत है, उसका आखिरी वक्त आता है। हाँ। Tariq sir would like to recite any other poem, or Tariq sir? No, you're on mute, sir. Sorry, excuse me. It's as I said, it's morning, and my grandchildren are around. They're
me to return. Thanks for joining, ma'am, and sir. Thanks for giving us your precious time. नल्ली मैम इज इन विच सिटी? Thank you very much. नल्ली मैम आप किस शहर में हैं? निर्जा मैम, नल्ली मैम किस शहर में अभी यूएस की? मैं अभी ऑरलैंडो में हूँ और छोटी बेटी के पास हूँ. यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं और नीरजा मैम का छोटा बेटा और उनकी फैमिली भी आई हुई है. तो हम 14 लोग हैं इस समय. बकबक हो रही है और everybody is waiting for me to join in the fun. तो मेरे ख्याल से ये समय हो गया. अब हम लोग ये खत्म करते हैं, वरना मुझे इजाजत है. एक छोटी सी नज़्म मैंने बहुत पहले लिखी थी, तो क्योंकि मुझे ये ऐप लग रही है इस मौके पर, तो मैं पेश कर सकता हूँ. प्लीज सर, इरशाद. आज जो करने को कुछ नहीं है, बिल्कुल. आज जो करने को कुछ नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं. एक खत अपने नाम लिखो, एक नज़्म अपने नाम करते. मैं ही उन्वान हूँ जिसका, मेरा ही जिक्र हो जिसमें, मेरी ही बात हो मुसलसल, मेरा ही नाम हो बयां, मेरी ही फसाने हो उजागर, मेरी ही कहानियाँ हो बयां. सिर्फ मैं और मैं की बात और मैं से ही मेरा सामना. चलता रहेगा ये सिलसिला देर तक, खामोश अपने आप में बैठ के, मन ही मन मुस्कुराते फिर मुस्कुराते, माजी मुस्तकबिल को याद करते हैं. करने को तो ये वैसे कुछ भी नहीं, बस कुछ करने के नाम करते हैं. आज करने को तो कुछ नहीं, तो चलो यही काम करते हैं. बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत अच्छी नज़्म थी. वेरी नाइस. जैसा कि मैं शुरू से कह रही थी कि मैं अपनी एक छोटी सी कविता से शाम का समापन करूंगी. आप लोग की कविता सुनने के बाद तो ये कुछ भी नहीं, फिर भी जो आज लिखा मैं अपने विचार बस व्यक्त करती हूँ. वर्ष कुछ खास तो नहीं गया, पर कुछ तजुर्बे खास दे गया. तो फिर क्या देखा? वही राजनीति के झूठे वादे, अनीति की कहानियाँ, जूही की डालियों का शोषण, तो कहीं सिगरेट की राख पर फूलों की लाशें. नया देखा तो क्या देखा? हाँ, वो नीली ड्रम का तेज, नारी शक्ति का बदलता परिवेश, प्रदूषण का बढ़ता जहर, एयर क्रैश का कहर. ऑपरेशन सिंदूर में सशक्त भारत जरूर देखा, वुमेन वर्ल्ड कप से जगमगाता भारत भी देखा. कहीं भक्ति में सराबोर महाकुंभ हुआ, तो कहीं भक्ति के ही ठेकेदारों से मन छिन्न भिन्न हुआ. इस साल ईश्वर के दरबार में प्रार्थना को कुछ ज्यादा ही जमावड़ा देखा, पर मंदिर से निकलते ही उन्हीं लोगों को करते जुल्म देखा. क्या सच में ये बदलाव था या सोशल मीडिया का था मायाजाल? क्या सच में लोग अच्छे हैं या छलावा का है संसार? नहीं, कुछ असत्य सा लगता है, भ्रम है, कुछ खो गया, कुछ मिथ्या सा लगता है. तो कहाँ गए वे उड़ते पक्षी, उनकी चहचहाहटें, वे खेलते बच्चे, वे शुद्ध हवा में सराबोर पत्तियों की सरसराहटें? लगता है अब जिंदगी बचपन मोबाइल में सिमट कर रह गया. मेरे देखते ही देखते अब सब कुछ बदल गया. शायद कल नव प्रभात होगा, नया आगाज होगा, स्वर्णिम सूर्य की लालिमा से नव वर्ष का श्रृंगार होगा. लौटेगा बचपन, न होगा कोई अकेला, होगी मुस्कुराहटें हर तरफ, लगेगा खुशियों का मेला. तो आओ करे स्वागत नवन वर्ष का, सरल सहज मन से, नई आशाओं, नए जोशोल्लास के साथ, कुछ कल्पना की धरातल पर तो कुछ वास्तविकता के साथ, नई संवेदनाओं, स्वर्णिम भविष्य के वादों और विश्वास के साथ. इस परिवेश मनोरम और सुखद बनाए, हंसे हंसाएं, गुदगुदाएं. नव वर्ष अपने प्रियजनों के साथ मनाएं. नूतन वर्ष अभिनंदन आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. थैंक यू सर. सभी को नया साल मुबारक. वेरी नाइस वंदना. थैंक यू. आप सबसे थोड़ा पीएलसीएस की तरफ से सबको नया साल मुबारक हो. सर हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम पीएलसीएस टीम. तारिक सर, आज गौहर सर हम लोग के साथ पहली बार ज्वाइन किए हैं. आपको पीएलसीएस टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. तारिक सर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर.